Respiration in plants. All of us breathe to live, but why is breathing so essential in life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. Breathing requires energy. Where does all this energy come from? We know that we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is the energy utilized? Do all foods give same amount of energy? No. Do all foods give same amount of energy? No. You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. The process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules. All the energy required for life processes, may be it absorption, transport, movement, reproduction, and even breathing, comes from the oxidation of some certain macromolecules that we call food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap the light energy and convert it into the chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates. They trap the light energy, convert it into the chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose, starch. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and the organs photosynthesize. Green plants में खाली green part photosynthesize करता है अपना food खुद ही. Only cells containing chloroplasts, that is green parts, that are most often located in the superficial areas ताकि उनको optimum light मिले, carry out photosynthesis. Hence, even in green plants, all other non-green, even in green plants, all other non-green parts of the plant, tissues and the cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all the non-green parts. Animals are heterotrophic, that is, they obtain their whole food directly or indirectly. They obtain their whole food directly or indirectly from the indirectly. Saprophytes like fungi dependent on the dead and the decaying matter. But it's important to recognize that ultimately all the food that is respired for life processes comes from food. All the food that is respired, all the food that is respired comes from photosynthesis, that is respired comes from the photosynthesis. This chapter deals with cellular respiration, or the mechanism of breakdown of food materials within the cell. Cellular respiration means mechanism of breakdown of food within the cell to release the energy. फिर करते हैं यही एनर्जी ट्रैप इन द एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी. यही एनर्जी करते हैं यूज़ इन द एटीपी. फिर इसी एटीपी को यूज़ करते हैं हम जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसी एटीपी को हम फिर यूज़ करते हैं. वो जो जब हम एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का की ऑक्सीडेशन करते हैं विद इन द सेल, ऑक्सीडेशन करते हैं या उसे कहेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, जो वहाँ से एनर्जी निकलेगी उसको हम यूज़ करेंगे, फिर स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. फिर एटीपी को यूज़ करेंगे, फिर एटीपी एक्ट एज करेंसी ऑफ एनर्जी. एटीपी एक्ट एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी. Photosynthesis of course takes place in the chloroplast. Photosynthesis of course takes place in the chloroplast. In the eukaryotes, chloroplast in the eukaryotes, whereas breakdown of the complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria itself. In eukaryotes, prokaryotes में जो respiration होती है वो होती है in mesosomes. eukaryotes में respiration होती है in the cytoplasm and the mitochondria. cytoplasm में glycolysis होती है, mitochondria में फिर Krebs cycle होता है जो आगे पढ़ेंगे. The breaking of the CC bonds of the complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration. Respiration is nothing, it is the breakdown of the carbon-carbon bond of complex compounds. Complex compounds के कार्बन कार्बन बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे थ्रू ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विद इन द सेल, उसकी वजह से इट इज देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ कंबशन प्रोसेस. कंबशन हमें पता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक कंबशन प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वहाँ से एनर्जी निकलती है. इसी तरह रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लीट कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या रेस्पिरेटरी सबस्टेंस को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं, वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज एटीपी. फिर वही एटीपी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जगह जहाँ हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की. एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी. द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइजर, द कंपाउंड्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिनको हम ब्रेक करेंगे, जिनसे हम एनर्जी निकालेंगे, उनको कहेंगे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. यूजुअली जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. लेकिन इसके अलावा प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड को भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ रॉ मटेरियल, और वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन.
In some plants are during oxidation within a cell, the energy contained in the respiratory substance is not released free in the cell. ये सेल में फ्री रिलीज नहीं होती है, और इन सिंगल स्टेप या एक ही स्टेप में रिलीज नहीं होती है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो फ्री फॉर्म में नहीं निकलती है, सेल में फ्री फॉर्म में नहीं निकलती, और एक ही स्टेप में नहीं रिलीज होती है. इट इज रिलीज एज सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस, फिर होती है ये ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation is not used directly. जब ऑक्सीडेशन होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो वहाँ पे एनर्जी निकलती है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बट वो यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी. In this ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. Hence, ATP act as the energy currency of the cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organisms and the carbon skeleton. इसमें देखो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे वहाँ से एनर्जी निकलेगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कार्बन स्केलेटन भी होता है. एनर्जी को हम यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज द एटीपी, फिर एटीपी को यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें एनर्जी की जरूरत लगेगी, एटीपी को यूज़ करेंगे, ब्रेक करेंगे एटीपी को ही जहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. इसके अलावा जो कार्बन स्केलेटन हमारे पास अवेलेबल होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो हम यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस, अदर कुछ अदर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. कार्बन स्केलेटन इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर, कहते हैं हम एज एन इनिशिएटर, जहाँ से हम कुछ बनाते हैं या जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल. मॉलिक्यूल एक सेल में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक साइटोप्लाज्म में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं हम थ्रू रेस्पिरेशन से. खाली एनर्जी नहीं मिलती है, रेस्पिरेशन से हमें हमें कार्बन स्केलेटन भी मिलता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल. Cellular respiration occurs inside the cytoplasm and the mitochondria in eukaryotes, but in prokaryotes it takes place inside the mesosomes. Respiratory substrates are the substances जो हम use करते हैं as a raw material during respiration. Most common respiratory substrate is carbohydrate और fats, carbohydrates, फैट्स, प्रोटीन एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्टेंस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन. द एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड फ्री इन द सेल बट इज एंड नॉट इन अ सिंगल स्टेप, बट इट इज रिलीज्ड इन अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. दिस एनर्जी रिलीज्ड इज देन यूज्ड टू सिंथेसाइज द एटीपी व्हिच इज यूटिलाइज्ड whenever and wherever energy is needed. Whenever and wherever energy is needed, whenever and wherever energy is needed, whenever and wherever energy is needed. Therefore, respiration, in short, it is a combustion of respiratory substrates, mainly carbohydrates. Do plants breathe? Well, the answer to this question is not quite so direct. Yes, plants require oxygen for respiration to occur, and they also give out carbon dioxide. Hence, प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है. अब हम देखेंगे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं कि नहीं, देखते हैं. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of the oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gas exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में दो चीज़ें होती है, एक तो स्टोमेटा होता है, दूसरा होती है लेंटिसल. लेंटिसल्स में जनरली होते हैं स्टम्स पे, और स्टोमेटा पता ही है लीफ पे होते हैं स्टोमेटा. देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट. बहुत से रीजंस हैं प्लांट्स को क्यों नहीं ज़रूरत है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. पहला रीज़न, हर कोई प्लांट सेल अपनी रेस्पिरेटरी नीड का खुद ख्याल रखती है. हर कोई प्लांट सेल अपनी रेस्पिरेटरी नीड का खुद ख्याल रखती है. फर्स्ट, ईच प्लांट part takes care of its own gaseous exchange needs. There is a very little transfer of gases from one part to another. Second, plants do not present great demands for gases exchange. Plants के लिए गैस वो उनको नहीं ज़रूरत होती है ज़्यादा गैस एक्सचेंज, जितना एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, जिस रेट पे एनिमल्स रेस्पायर करते हैं उससे फार लेसर रेट पे या स्लोअर रेट पे रूट्स या स्टम्स या लीव्स रेस्पायर करते हैं. रूट स्टम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट इज फार लोअर देन द एनिमल्स डू. ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस large volumes of the oxygen, large volumes of the gases are exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own needs during these periods. When cells photosynthesis, availability of the oxygen is not a problem in these cells since oxygen release. जब सेल फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट सेल में, उस वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज रेटेड एज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट. पहला रीजन, plants can get along with the respiratory system. Yes, plants में breathing होती है, plants में gas exchange होता है, carbon dioxide, oxygen with the help of stomata, with the help of the lenticels, but plants में कोई specific respiratory system नहीं होता है. पहला, हर कोई plant से अपनी respiratory need का खुद ख्याल रखती है. दूसरा, plants को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है gaseous exchange की. खाली photosynthesis के दौरान बहुत सारी gaseous exchange होती है. photosynthesis के दौरान ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, फोटोस में प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरा तीसरा द distance that the gases must diffuse even in large bulky plants is not great. Even each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves. This is true for leaves. You may ask what about the thick woody stems and roots. In stems, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also have an opening called the lenticels. The cells in the interior are generally dead and provide only mechanical support. देखो respiration करेंगे living cell of plant. Living cell generally होती है superficial. जो bulk होता है plant का वो होता है generally dead. Generally होता है dead. वो living cell होती है close to surface. वहाँ से खुद वो respiration करती है. The complete combustion of the glucose, which produces carbon dioxide, water, and produces yield energy. Most of the energy that is released during the photosynthesis goes out as मैंने पहले ही बोला था respiration is an exothermic process में जो energy निकलती है वो किस form में निकलती है heat form में. If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize to synthesize other molecules that the cell requires. The strategy that this plant cell uses to, यहाँ पे एक strategy plant cell करती है. प्लांट सेल भी क्या स्ट्रेटजी करती है, वो जो एनर्जी हीट एनर्जी निकलती है वो ये करती है. ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज करते हैं वो नहीं करते हैं वो द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज नॉट इन अ सिंगल स्टेप बट इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन. सीरीज ऑफ स्लो, हर किसी स्टेप में छोटी छोटी हीट छोटी छोटी एनर्जी निकलती है. फिर उन सारी एनर्जी को हम कपल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर एटीपी बनाते हैं. गो फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज if this energy, the strategy that the plant cells is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in a one step but in a small several steps, enabling some steps to be just large enough so such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. How this is done, essentially the story of the respiration. During the process of the respiration, oxygen is utilizing as the carbon dioxide, water, and the energy are released as product of the combustion of the reaction. But some cells live, therefore respiration needs oxygen. लेकिन कुछ cells ऐसी होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं, जिनके ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनमें भी रेस्पिरेशन होती है. उसको कहेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली एक टर्म आती है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस. There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet live in atmosphere. तो पता ही है जो पहली लाइफ थी on the planet, जो पहली लाइफ थी ऑन द प्लैनेट दैट वाज रिड्यूसिंग. वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था. वो लाइफ कैन बी पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन कैन बी पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. देयर इज एन एविडेंस, हमारे पास एविडेंस है जो हमारी पहली लाइफ थी ऑन अर्थ दैट वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन था ही नहीं. वो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. लाइफ इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन बट फॉर सर्टन ऑर्गेनिजम्स दैट आर कॉल्ड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. Some of these organisms are facultative anaerobic while in other facultative anaerobic मतलब facultative while in others they convert the anaerobic condition. facultative anaerobic मतलब कभी वो एरोबिक भी बिहेव करते हैं, कभी एनारोबिक बिहेव करते हैं. ओब्लिगेट एनारोबिक्स का मतलब है जो जिनको खाली और खाली एनारोबिक कंडीशन की जरूरत होती है. एनारोबिक को facultative anaerobics और obligate anaerobics. In case all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen, this breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. हर किसी organism, whether it is aerobic, whether it is anaerobic, whether it is facultative anaerobic, whether it is facultative anaerobic, whether it is obligate anaerobic, हर किसी organism के पास एक मशीनरी होती है जिसकी वजह से वो partially oxidize कर सकते हैं glucose without the help of oxygen. This partial oxidation of glucose without the help of oxidation, it's called glycolysis. During glycolysis, the glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvic acid. जिसका ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे डिटेल में. हमने पढ़ा प्लांट्स में रेस्पिरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कुछ रीजंस पढ़े. फिर पढ़ा हमने प्लांट्स में जब जो निकलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट, वो निकलती है मेजॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर्म में निकलती है एनर्जी. फिर प्लांट ने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई, उसे ये स्ट्रेटजी अपनाई कि उसने जो रेस्पिरेशन की वो एक ही स्टेप में नहीं की. जो सारी हीट निकली वो एक स्टेप में नहीं निकली, वो सेवरल स्मॉल स्टेप्स में निकली. फिर उन स्मॉल स्टेप्स की जो हीट एनर्जी थी उसको कपल किया, बनाया एटीपी. कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रहते हैं इन एन एनारोबिक कंडीशन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन उनमें भी एनर्जी उनमें भी फूड से एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं. उनमें होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, उसको कहेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं उनको कहेंगे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट. फैकल्टेटिव मतलब जो एरोबिक भी कभी कभी बिहेव कर सकते हैं, एनारोबिक भी बिहेव कर सकते हैं. ओब्लिगेट मतलब जो खाली और खाली एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं.
फिर हमने पढ़ा हर किसी ऑर्गेनिज्म में के पास एक मशीनरी होती है ताकि वो पार्शली ऑक्सीडाइज करे ग्लूकोज, पार्शली ऑक्सीडाइज करे ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइज करे विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन to the two molecules of pyruvic acid. That process is called glycolysis. The term glycolysis has been originated from the Greek words glykos for sugar and the lysis for splitting. The scheme of the glycolysis was given by the Emden, Otto, Meyerhof and the J. Parnas. Therefore, it is called as the EMP pathway. EMP pathway. EMP pathway. Emden, Otto, Meyerhof and the J. Parnas, and is often referred to as EMP pathway. In anaerobic organism, it is the only anaerobic organism में अगर कोई process होती है respiration के द्वारा वो होती है खाली glycolysis. वो glycolysis is the only process in anaerobic organisms. It is the only process in respiration. Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell and is present in all living organisms, whether it is aerobic, whether it is anaerobic. It occurs in the cytoplasm of the cell. In this process, the glucose undergoes partial oxidation to form the two molecules of pyruvic acid. The glucose undergoes oxidation. In plants, this glucose is derived from the sucrose. पहले sucrose बनता है, फिर sucrose पहले. This glucose is derived from the sucrose, which is the end product of the photosynthesis or from the storage carbohydrates. जो sucrose मिलता है, sucrose को break down करते हैं हम in glucose and fructose with the help of the enzyme invertase. फिर यही glucose enter करता है in the glycolytic pathway. In the glycolytic pathway. Glycolytic pathway. What is glycolysis? It is the partial oxidation of glucose to two molecules of pyruvic acid without the help of oxygen inside the cytoplasm. Very important. Inside the cytoplasm. Inside the cytoplasm. Sucrose is converted to glucose and fructose by the enzyme invertase. Sucrose is converted to glucose and fructose by the enzyme invertase. Sucrose is converted to glucose and fructose by the enzyme invertase. And these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Glucose and the fructose are phosphorylated to give the glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase. The first enzyme of glycolysis hexokinase, जहाँ पे ग्लूकोज को हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं, ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं. ग्लूकोज को जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं वो बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. यहाँ पे एक एटीपी खर्च होता है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को आइसोमराइज करते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को एक और फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करते हैं. यहाँ पे एक और एटीपी खर्च होता है, वो बनाता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट पे फ्रक्टोज जो बनता है फ्रॉम द सक्रोज ऐड होता है या स्टार्ट होता है उसकी ग्लाइकोलिसिस. This phosphorylated form of the glucose then isomerates to form the fructose 6-phosphate. Subsequent steps of the metabolism of glucose and fructose. और यहाँ से जो steps of glucose and fructose हैं वो होती हैं same. The various steps of glycolysis are repeated in the chain of 10 reactions. Total जो glycolysis में total reactions हैं that are 10 in number under the control of the different enzymes takes place to produce the pyruvate from the glucose while studying the ATP is utilized at two steps. First in the conversion पहले ग्लूकोज से बनता है पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द हेक्सोकाइनेज. फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आइसोमरेज की वजह से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. यहाँ पे एक और एटीपी खर्च होता है. फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट होता है. फिर ब्रेक स्प्लिट होता है इन ट्रायोसफॉस्फेट. दो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड 2. फिर इनमें से एक और फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होगा तो बनेंगे यहाँ पे NADH + H पॉजिटिव बनता है. ट्रायोसफॉस्फेट 1,6-बिसफॉस्फेट ट्रायोसफॉस्फेट. 2 molecules of 1,3-bisphosphoglyceric acid. 2 molecules of 1,3-bisphosphoglyceric acid. 2 molecules of 1,3-bisphosphoglyceric acid. 2 molecules यहाँ से twice 2 मल्टीप्लाई करना है. 2 molecules of 1,3-bisphosphoglyceric acid. 2 ट्रायोसफॉस्फेट 3-phosphoglycerate 1,3-bisphosphoglyceric acid. फिर इसमें से एक और फॉस्फोरस निकालेंगे, ये बना 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate को आइसोमराइज करेंगे 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate से एक और फॉस्फोरस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरेट. फॉस्फोइनॉल पायरेट से एक और एक फॉस्फोरस निकलेगा, ये बनेगा पायरुविक एसिड. यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, दो ट्वाइस मल्टीप्लाई करता है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ द एक्सोकाइनेज ATP यहाँ पे यूटिलाइज होता है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. यहाँ पे एक और ATP खर्च होता है. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट होता है स्प्लिट इनटू 3-phosphoglyceric एसिड एंड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट 3-phosphoglyceric एसिड. यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना है 3-phosphoglyceric एसिड से. 3-phosphoglyceric एसिड से बनता है 1,3-bisphosphoglyceric एसिड. 1,3-bisphosphoglyceric एसिड से बनता है 3-phosphoglycerate. यहाँ पे एक और ATP बनता है 3-phosphoglycerate यहाँ पे एक और ATP बनता है. 3-phosphoglycerate से बनता है 2-phosphoglycerate से बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक और फॉस्फोरस ग्रुप निकलता है. ATP बनता है पायरुवेट. 2 molecules of pyruvate are formed from 1 molecule of glucose. ATP होते हैं खारिज 2 स्टेप्स में, पहले स्टेप्स में तीसरे स्टेप्स में. फिर बनते हैं NADPH बनता है. फिर ATP NADPH 2 बनते हैं और 4 ATP बनते हैं. NADPH 2 4 ATPs बनते हैं. 4 ATPs और 2 NADPH + H पॉजिटिव बनते हैं और 2 ATP खर्च होते हैं. 4 ATP बनते हैं, 2 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH + H पॉजिटिव बनते हैं. PGA तो 3-phosphoglycerate is also energy yielding process.
Pyruvic acid is the key product of the glycolysis. The key product of the pyruvic acid. The pyruvic acid is the key product of the glycolysis. What is the metabolic fate of the pyruvate? This depends on the cellular need. The metabolic fate. अब इसकी किस्मत में क्या लिखा होगा? पायरुवेट की किस्मत में क्या लिखा होगा? इसमें लिखा हो सकता है फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिखा हो सकता है, इसमें लिखा हो सकता है यीस्ट फर्मेंटेशन, इसमें लिखा हो सकता है क्रिब्स साइकिल, या वो कैन से दैट इसमें लिखा हो सकता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन को कहेंगे सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशन में खाली क्रिब्स साइकिल आता है, ठीक है। वो इसकी जो फेट है, किस्मत ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन मैटर, डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर नीड, डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर, किस्मत ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर नीड। देयर आर थ्री मेजर वेज, तीन तीन रास्ते हैं इस पायरुवेट के पास। या तो जाएगा ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो जाएगा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या तो जाएगा ये एरोबिक रेस्पिरेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशंस इन many prokaryotes and unicellular eukaryotes. Very important point, very 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 important. But there are three major ways in which the pyruvate can be utilized. What is the metabolic fate? Metabolic fate of the pyruvate depends upon the cellular need. Metabolic fate of the pyruvate depends upon the cellular. Pyruvate is a two-carbon compound. Three ways: alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, and the third one is aerobic respiration or simply Krebs cycle. Lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, and the aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑकर्स इन मनी प्रोकैरियोट्स, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में फर्मेंटेशन होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में खाली यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। anaerobic conditions in many prokaryotes and the unicellular eukaryotes. For the complete oxidation of the glucose to carbon dioxide in the water, our organisms adopt a Krebs cycle, or we can say aerobic respiration, also called aerobic respiration. This requires oxygen supply. फर्मेंटेशन ऑकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर। फर्मेंटेशन में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत नहीं होती है। फर्मेंटेशन ऑकर्स विदाउट एन एक्चुअली आस्क्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये फर्मेंटेशन ऑकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर। फर्मेंटेशन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर के बगैर ही होती है। फर्मेंटेशन ऑकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन फर्मेंटेशन से बाई यीस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये तो पता ही है यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो खाली क्रिब्स साइकिल में होती है। इन फर्मेंटेशन से बाई यीस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन of the glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide. Alcoholic fermentation में pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. The enzyme pyruvic acid decarboxylase, carbon dioxide release होता है in alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation में alcohol decarboxylase alcohol pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase. pyruvic acid decarbox दो एंजाइम्स खर्च होते हैं इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक तो pyruvic acid से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और बनाते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर। एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस बनाता है इथेनॉल। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, तो और पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है बाहर फ्रॉम द पायरुविक एसिड। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेट एंड द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस catalyzes reactions on other organisms like some bacteria produce lactic acid from the pyruvic acid. The steps involved are shown in the figure in animal cells, also like muscle during exercise when oxygen is inadequate for the cellular respiration to pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase. The reducing agent NADH plus H positive, which is reoxidized in the reducing agent होता है in both fermentation processes, maybe it alcoholic fermentation or अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दैट इज NADH प्लस H पॉजिटिव विच इज ऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव इन बोथ। वो इसमें से NADH प्लस H पॉजिटिव खर्च होता है। देखो इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट कन्वर्ट होता है इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ द टू एंजाइम्स pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase. Pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase. Pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase. Oxidation में pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase. Lactic acid lactate dehydrogenase. Lactic acid में कोई कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ लैक्टिक एसिड बनते हैं। दोनों प्रोसेस में NADH प्लस H पॉजिटिव एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दो फर्मेंटेशन में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत नहीं होती है। दोनों प्रोसेस में NADH प्लस H पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड द अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसमें से खाली 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ऑल्सो द प्रोसेस हैजर्डियस, ये बहुत हैजर्डियस प्रोसेस क्योंकि इसमें एसिड बनता है या अल्कोहल बनता है एज प्रोडक्ट। Yeast poisons themselves to death when the concentration of the alcohol reaches about 13%. Very important. Yeast जब yeast अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं वहाँ पे उनको खुद ही डेथ होती है रेस्पिरेशन से, फर्मेंटेशन से, क्योंकि जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन रीच करती है 13% फिर yeast डेथ हो जाते हैं। दैट इज yeast poison themselves, खुद ही को पॉइजन, खुद ही को जहर देते हैं, खुदकुशी करते हैं वो कैन से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन yeast becomes खुदकुशी when the alcohol concentration reaches 13% becomes खुदकुशी when the alcohol concentration reaches about 13%.
person. In fermentation say by the yeast, the incomplete oxidation of the glucose, दो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन होती है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एथेनॉल बनता है, उसमें से दो एंजाइम्स यूज होते हैं, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और NADH plus H positive acts as the reducing agent. The second one is lactic acid dehydrogenase. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है विद हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. इसमें भी NADH plus H positive एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. दोनों ही प्रोसेस में दे उनमें से less than 7% of the energy present in glucose released in this process. Also these processes are hazardous because either the acid or alcohol is formed. Yeast poison themselves when the alcohol concentration reaches about 13%. When the alcohol concentration reaches about 13%. When the alcohol concentration reaches about 13%. What then is the process by which the organisms can carry out complete oxidation of the glucose and extract the energy stored to synthesize a large amount of the ATP molecules needed for the cellular metabolism? In eukaryotes, these steps take place within the mitochondria and this requires oxygen. For the complete oxidation, हमने पहले ही बोला था there are three ways, तीन रास्ते हैं पायरुवेट के लिए. या तो वो जाएगा फर्मेंटेशन के पास, को दो फर्मेंटेशन है उसके पास, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या तो वो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होती है, वहाँ पे मैक्सिमम ATP रिलीज होता है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, वहाँ पे ही ATP बनता है, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल. ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की किस्मत है कि वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द presence of oxygen and releases carbon dioxide, water and a large amount of energy present in the substrate. This type of respiration is most common in higher organisms. Fermentation कहाँ होती है? In many prokaryotes and unicellular eukaryotes. याद रखना है. Aerobic respiration. For the aerobic respiration to take place, जो pyruvate takes place in the mitochondria, the final product of the glycolysis, pyruvate is transported from the cytoplasm. Pyruvate is transported from the cytoplasm in the mitochondria, and pyruvate is transported from the cytoplasm, and the pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. The crucial events in the aerobic respiration are: पहला, complete oxidation of the pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of carbon dioxide. देखो पायरुवेट में तीन कार्बन, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें से जो सारे कार्बन को निकालेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सारे कार्बन एक पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, दूसरे पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, दो पायरुवेट, एक पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड, एक पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल जो 6 कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं वो अल्टीमेटली रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स इंपॉर्टेंट. 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है हमें यहाँ पे complete from the pyruvate. Second one is the passing on the electron is removed as a part of hydrogen atoms to the molecular oxygen with the simultaneous. जो यहाँ पे the passing on the electrons removed as a part of hydrogen atoms, जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, जो हाइड्रोजन एटम्स जो रिमूव होंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसके साथ साथ ही ATP बनेगा. उसके साथ साथ इसको कहेंगे हम क्रिब्स साइकिल, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्रिब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. क्रिब्स साइकिल occurs in the matrix of the mitochondria and electron transport system occurs in the intermembrane space of the mitochondria. Electron transport system, Krebs cycle. Therefore एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने आते हैं? दो चीज़, एक होती है क्रिब्स साइकिल, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्रिब्स साइकिल में हम सारे हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हाइड्रोजन एटम्स को निकालते हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसके साथ साथ ही ATP बनता है. जब इलेक्ट्रॉन्स को हम पास ऑन करते हैं टुवर्ड्स द molecular oxygen, उसके साथ साथ ही simultaneous synthesis of ATP होती है. What is interesting to note that is the first process takes place in the matrix of mitochondria while the second process located on the inner membrane space, inner membrane of the mitochondria. First inner membrane के पे होते हैं क्रिस्टे में होते हैं, वहाँ पे ATP synthesis and so on. सेल में पढ़ा है हमने माइटोकॉन्ड्रिया. That is Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria and electron transport system or electron transport chain is present in the inner membrane of the mitochondria. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrates in the cytosol or cytoplasm after it enters mitochondria. Mitochondria में घुसने के बाद पायरुवेट की को एक रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, उसको कहेंगे हम लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं हम इन को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए. पायरुवेट से हम एक और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे बाहर, पायरुवेट की मदद से हम एक और NADPH को सिंथेसाइज करेंगे, इसको कहेंगे हम लिंक रिएक्शन. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज.
यहाँ पे होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, इस रिक्वायर्स Mg2 पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर, Mg2 पॉजिटिव एज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक निकलता है फ्रॉम वन पायरुविक एसिड, यहाँ पे एस्टर को एंजाइम मॉलिक्यूल एक बनता है फ्रॉम वन पायरुविक एसिड, और यहाँ पे एक NADPH प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वन पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से दो एस्टर को एंजाइम ए बनेंगे, दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे लिंक रिएक्शन में, और दो NADPH प्लस H पॉजिटिव बनेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन कहाँ पे होती है? मैट्रिक्स में। जब पायरुविक एसिड एंटर करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, it undergoes oxidative decarboxylation, it undergoes oxidative decarboxylation in presence of oxidative decarboxylation. Yes, oxidative decarboxylation, it is actually link reaction. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrates in the cytosol after it enters the mitochondrial matrix, undergoes the oxidative decarboxylation by the complex set of the reactions catalyzed by the pyruvate dehydrogenase decarboxylation. Pyruvate dehydrogenase, the reactions catalyzed by the pyruvate dehydrogenase to carry the participation of the several cofactors like Mg2 positive, Mg2 positive आता है इसमें, NAD positive, coenzyme A, NAD positive acts as a cofactor here, NAD positive acts as a cofactor here, NAD positive, coenzyme A, from one pyro coenzyme in any acetyl coenzyme carbon acid in H plus H positive matrix में होगी ये reaction, और this reaction occurs in matrix, that is oxidative decarboxylation occurs in matrix, or we can say that link reaction. Krebs cycle, there are three steps to Krebs cycle: electron transport system, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पहली होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद होगी क्रिब्स साइकिल, उसके बाद होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रिब्स साइकिल बोलते हैं, जो हमें पढ़ना है। क्रिब्स साइकिल में क्या होगा? सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे बाहर। एक पायरुवेट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? एक पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ही निकाला किसमें? लिंक रिएक्शन में। अभी खाली 2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो क्रिब्स साइकिल होंगी इसमें 2 कार्बोक्सिल डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होंगी, क्योंकि इसमें जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना, कुछ सिंथेसिस ऑफ ATP भी होगी। अब देखिए क्या हो, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्रिब साइकिल में खाली 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, क्रिब साइकिल में खाली 2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होंगी, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए है इज द जो प्रोडक्ट एंटर करता है इन द क्रिब साइकिल, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसमें खाली 2 ही कार्बन है, उसमें खाली 2 ही कार्बन होते हैं, उसमें खाली 2 ही कार्बन होते हैं। उनको हम निकालना है बाहर, उनको निकालेंगे बाहर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर क्रिब साइकिल में खाली 2 डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। The tricarboxylic acid cycle starts with the condensation of the acetyl group, or we can say acetyl coenzyme with the oxaloacetic acid. It's a 4 carbon compound, कल पढ़ा था हमने। oxaloacetic acid is a 4 carbon compound, and water और oxaloacetic acid के साथ रिएक्ट करके बन आता है citric acid। ये तो होता है 2 carbon compound, it is a 4 carbon, citric acid बनेगा 6 carbon compound। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड साइट्रिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रिक एसिड। द रिएक्शन इज catalyzed by the enzyme isocytrate synthetase and the molecule of coenzyme A is released। जो coenzyme A molecule है वो रिलीज होता है, and the molecule of coenzyme A is released। फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिब्स साइकिल में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ acetyl coenzyme A with a 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid, to form a 6 carbon compound citric acid in presence of the enzyme citrate synthetase। फिर यही citrate फिर आइसोमराइज होता है इन द आइसोसाइट्रेट। यहाँ पे acetyl को एंजाइम ए मॉलिक्यूल रिलीज होता है सबसे citrate। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ द डिकार्बोक्सिलेशन। सक्सेसिव, उसके बाद ही आइसोसाइट्रेट बनता है। आइसोसाइट्रेट को होते हैं 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो 2 ही होते हैं, वो एक के बाद एक होती हैं, सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा कीटो। देखो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे बाहर, वहाँ तो 4 कार्बन ही बनेगा। 6 कार्बन कंपाउंड कौन है? साइट्रिक एसिड। जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे सिर्फ कार्बन की बात होगी, सिर्फ कार्बन की बात। एंड देन सक्सेनल कोएंजाइम ए भी होगा 4 कार्बन कंपाउंड। ड्यूरिंग सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ NADPH मॉलिक्यूल बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 क्रिब साइकिल होते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने साइकिल्स? क्रिब साइकिल्स 2 क्रिब साइकिल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितने डिकार्बोक्सिलेशन? 2। उनमें से दोनों ही डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सक्सेसिव होती है। पहले साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रेट बनने के बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड। एंड देन सक्सेनल कोएंजाइम पहले बनता है 2 कार्बन निकले हैं, बनता है सक्सेनल कोएंजाइम में। अल्टीमेटली सक्सेनल कोएंजाइम में 5 कार्बन कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड।
6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, वहाँ पे बनेगा अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड, फिर बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम इट्स 4 कार्बन कंपाउंड, इन दो स्टेप्स में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2 NADH प्लस H पॉजिटिव सिंथेसिस, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद बनेगा सक्सिनिक एसिड, वहाँ पे GTP बनेगा, GTP इसको कहेंगे डायरेक्टली ATP, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टेप को कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ATP बनेगा। फिर सक्सिनिक एसिड से बनेगा फिमेरिक मैलिक एसिड, फिमेरिक यहाँ पे दिखा नहीं है टेक्स्ट में, फिमेरिक बनता है पहले, डायरेक्टली सक्सिनिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड से, फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा, यहाँ पे एक और बार NADH प्लस H पॉजिटिव सिंथेसाइज होता है, वो एक क्रिब साइकिल में 3 जगह NADH प्लस H पॉजिटिव सिंथेसाइज होता है, एक जगह GTP सिंथेसाइज, एक जगह FADH, FADH 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP, 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 FADH equal to ATP. This step is called as a substrate level for एक जगह substrate level phosphorate होती है. For one molecule, one cycle of Krebs cycle, for one cycle of Krebs cycle, two carbon dioxide are released, 3 NADH plus H positive, 1 FADH, 1 GTP, 3 NADH plus H positive. पहले आता है Krebs cycle में जो पहले कार्बन जो पहला कंपाउंड Krebs cycle में एसिटाइल कोएंजाइम में घुसेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करेगा विद 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा वो बनाएगा वहाँ पे साइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम साइट्रेट सिंथेसिस और कोएंजाइम मॉलिक्यूल को लिबरेट करेगा, साइट्रेट फिर कन्वर्ट होगा आइसोसाइट्रेट में विद हेल्प ऑफ द आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोसाइट्रेट के बाद उसको होगी सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन 2 स्टेप्स में, वहाँ पे दोनों ही स्टेप्स में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे और NADH NADPH प्लस H पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव सिंथेसाइज होंगे। पहले जो साइट्रेट है, साइट्रिक एसिड इज 6 कार्बन कंपाउंड, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वहाँ पे बनेगा 5 कार्बन कंपाउंड दैट्स अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड, उससे एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो बनाएगा वहाँ पे सक्सिनल कोएंजाइम इट्स 4 कार्बन कंपाउंड, फिर सक्सिनल कोएंजाइम ए से बनेगा सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे GTP बनेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनिक एसिड से बनेगा फिर मैलिक एसिड के इस स्टेप में बनेगा FADH 1 FADH 2 इज इक्वल टू 2 ATP, फिर FADH2 मैलिक एसिड से बनेगा वापस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, दस कंप्लीटिंग द साइकिल, लास्ट स्टेप में बनता है एक और NADPH प्लस H पॉजिटिव, दस इन क्रिब साइकिल, वन साइकिल ऑफ क्रिब साइकिल में कितने NADPH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं 3, एक GTP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, एक FADH2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होते हैं क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में टोटल दो ही कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रिब साइकिल्स होंगी, एक ग्लूकोज के लिए एक ग्लाइकोलिसिस होगी, एक ग्लूकोज के लिए 2 लिंक रिएक्शंस होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट link reaction. Now we'll see that the glucose has broken down to release the carbon 8 molecules NADH H positive 2 molecules FADH2 having synthesized besides 2 molecules ATP interact to reset. अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द हेक्टिक पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहले हम कुछ पानी पिएंगे। Electron transport system also called as oxidative phosphorylation. यहाँ पे हम रिडॉक्स पोटेंशियल की मदद से की एनर्जी को यूज़ करके ATP सिंथेसाइज करेंगे, इसीलिए कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फोटोसिंथेसिस में भी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ATP सिंथेसिस होती है लेकिन विद हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी, उसको कहेंगे फोटो फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल की एनर्जी को यूज़ करते हैं और बनाते हैं ATP, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर वो CFO चैनल से CFI ATP साइड से बाहर आते हैं टूवर्ड्स द बाहर आते हैं, फिर वहाँ उनकी मूवमेंट से, प्रोटॉन्स की मूवमेंट से फिर ATP कॉपुलेशन होती है, ATP कॉपुलेशन, और वी कैन से दैट ADP सिंथेसिस, ADP मिलता है फॉस्फेट से। The following steps in the respiratory processes are to release and utilize the energy stored in NADH plus FADH2। जो मकसद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो होता है NADH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव एनर्जी निकालनी या इनको ATP में कन्वर्ट करने की का मकसद होता है, FADH2 को ATP में एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, एक NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। NADH 1324, it's just trick, some sort of trick. My own way 1324.
NADH dehydrogenase, NADH dehydrogenase पहला, दूसरा है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, तीसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, चौथा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed to the oxygen resulting in the form of the protons को हम करेंगे when they are transported when they are oxidized through the electron oxidize करते हैं, यहाँ से जो electrons निकलते हैं उन electrons को करेंगे हम transport to the molecular oxygen और वहाँ पे synthesis होगी ATP की, इसको कहेंगे हम oxidative phosphorylation. The metabolic pathway through which the electron passes through one carrier to another is called the electron transport system. It is a metabolic pathway. जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होगा या ट्रांसपोर्ट होगा उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस. प्रोटॉन्स कहाँ पे एक्युमुलेट होते हैं? इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. And it is present in the inner mitochondrial membrane. Electron transport system. Electrons from the NADH produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex number 1, that's called the NAD1 complex number 1, फिर होता है 3, फिर वो करता है 2, फिर 4, नॉन खच NADH dehydrogenase cytochrome BC1 complex succinate dehydrogenase. Last one is cytochrome C oxidase. 1324 1324 1324 रिमेंबर करना है. प्रोटॉन्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में. एटीपी सिंथेसाइज होता है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स फिर साइड, मैट्रिक्स साइड से फिर एटीपी सिंथेसाइज होता है. एटीपी सिंथेसाइज मैट्रिक्स साइड. NADH complex and the electrons are then transferred to ubiquinone. NADH dehydrogenase जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको उसको ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स ubiquinone विद हेल्प ऑफ द FMN आयरन सल्फर प्रोटीन. उसके बाद ubiquinone रिड्यूस होता है टुवर्ड्स द reduced ubiquinol, उसको कहेंगे ubiquinol is then oxidized with the transfer electrons to cytochrome. ubiquinone से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम B, फिर आयरन सल्फर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, फिर A, साइटोक्रोम B पर C1, फिर CAA3 साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C. पहले इलेक्ट्रॉन्स आएगा फ्रॉम द NADH dehydrogenase टुवर्ड्स द FMN, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से आएगा सीधे साइटोक्रोम ubiquinone equivalents from the FADH2 from the complex number 2 FADH2 complex number 2. We have the FADH2 complex number 2 that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle. Complex number 2 known as succinate dehydrogenase. Reduce equivalents on the dehydrogenase. ubiquinone reduce होता है towards ubiquinol, फिर होता करता है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर towards the cytochrome B, cytochrome BC1, cytochrome A, cytochrome BC1, फिर cytochrome C एक जगह AA, C1C AA3, cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A, cytochrome A3, C1 फिर C फिर A फिर A3. आयरन सल्फर FMN ये आ सकता है यहाँ पर FMN, फिर आयरन सल्फर, फिर इलेक्ट्रॉन ubiquinol, फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम आयरन सल्फर, फिर से यहाँ पे फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C से सब C फिर C फिर A फिर A3. साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर A, कॉपर B, A के ऊपर यहाँ पे होता है कॉपर A, यहाँ पे होता है कॉपर B, कॉपर A, कॉपर B, कॉपर A, कॉपर B. कितना रेस्पिरेशन. NADH dehydrogenase complex नंबर, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम रहेंगे 1324 NADH dehydrogenase. 3 cytochrome BC1 complex 2 succinate dehydrogenase cytochrome
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स की नाम याद है। फिर NADH हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, FMN आयरन सल्फेट टू साइटोक्रोम, और फिर यूबिक्विनोन से रिड्यूस होगा यूबिक्विनोल में, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम बी से निकलेगा साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम सी, फिर साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, ए और ए के ऊपर होता है कॉपर A3 के नीचे होता है कॉपर बी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम electrons from the NADH produced in the mitochondrial matrix during the cell cycle or Krebs cycle are oxidized by an NADH hydrogen complex number 1 and electrons are then transferred to the ubiquinone located within the inner membrane. Ubiquinone located within the inner membrane में होता है ubiquinone side electrons inner membrane. Ubiquinone also receives the reducing occurrence via the FADH2, that's complex number 2, FADH2 complex number 2, that is generated. The reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of the electrons to cytochrome C via a cytochrome BC1. cytochrome C को पहले आएगा cytochrome B, फिर cytochrome C1, फिर cytochrome C complex number third. Yes, cytochrome B7 complex, that's complex number third. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane. OSIM. Cytochrome C is a small protein located present on the outer surface of inner membrane. Present on outer surface of inner membrane. That's OSIM. OSIM means outer surface of inner membrane. Outer surface of inner membrane. So cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier of the transfer of electrons between the complex third and complex number 4. complex number third and complex number 4 के दरमियान complex number third क्योंकि 1 3 2 4 3 और 4 के दरमियान जो करता है act as a mobile electron carrier, that is cytochrome C. Cytochrome C is a small protein located on the outer surface of inner membrane, acts as a mobile electron carrier between the complex number third and complex number 4. complex number third and complex number 4 के दरमियान. complex number 4 refers to the cytochrome C oxidase complex containing 2 copper centers A and A3, 2 cytochromes and 2 copper centers, copper A and copper B, copper A and copper B. Cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase is called as the complex number 4 is the cytochrome C oxidase contains 2 cytochromes, cytochrome A, cytochrome A3 and 2 copper centers, copper A and copper B, copper A and copper B, copper A and copper B, copper A and copper B. When the electrons pass from the one carrier to the other via the complex number 1 to 4, 1 to 4 से जब electrons transfer होते हैं from 1 to 4 complete the ATP synthesis, the complex number 5 for the complex number 5 को ATP synthesis कहते हैं. complex number 5 ATP synthesis जिसमें एक होता है एक channel part, एक होता है head part. channel part को कहते हैं हम CFO and head part को कहते हैं CFI. It's not CF1, it's CFI, CFO, CFI. ATP synthesis complex number 5 अगर आएगा complex number 5 ATP synthesis यहाँ पे लिखा नहीं है डायग्राम में. complex number 5 इसको कहेंगे जहाँ पे जो ये है ना ATP synthesis complex number 5 टेक्स्ट पे लिखा है complex number 5 कहते हैं. इसमें 4 ही complex होते हैं 1 3 2 4 then फिर से NADH hydrogenase, cytochrome B7 complex, succinate hydrogenase and the last one is cytochrome C oxidase. उसमें 2 cytochromes होते हैं cytochrome A, cytochrome A3 and 2 copper centers होते हैं copper A and copper B, copper A and copper B. In order to phosphate ATP, the number of the ATP molecules synthesized depends on the nature of the NADH से 3 ATP बनते हैं, FADH से 2 molecules ATP बनते हैं. The role of the oxygen is limited to the terminal stage of the process. Electron transport system में role of oxygen सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा important role of oxygen का ये, क्योंकि जो electrons वो आएंगे फिर वो electrons को oxygen को ही देने हैं, लेकिन last stage तक oxygen का role होता है. The role of the oxygen is limited to the terminal stage of the process. Here the process of oxygen vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. Hydrogen को accept करता है, बनाता है. Water as a byproduct of the unlike photophosphoridation where it is the light energy that ये पहले ही बोला मैंने, photogradation of the proton gradient. Here the proton gradient to carry for the oxidation reduction utilized for the same process is called as the oxidative phosphorylation. ये तो पहले ही बोला था. कभी 1 3 2 4 5 को लेंगे cytochrome सॉरी ATP synthesis ये तो पढ़ा ही है. CFO CFI NADH से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP बनते हैं. Transport system is utilized synthesizing ATP with the help of the ATP synthesis complex number 5. This complex consists of the two major components Fi and F0. The Fi headpiece is a peripheral membrane protein complex towards is present towards the matrix side. Is present towards the matrix side. ATP जो बनता है वो release होता है in the matrix. Processing the ATP from the inorganic fossil F0 is then integral membrane protein complex that forms the channel through which the protein the passage of the protons through the channel is coupled to catalytic cycle. F1 में होता है. F0 जो ये है ना F0 कैसे channel. This is गोल की ओपनिंग किसकी होती है? चैनल की. को F0 होती है चैनल और F1 होता है हेड. F1 होता है हेड, F0 होती है चैनल. F0 हेड चैनल.
हेड में होता है एटीपी सिंथेस, चैनल में से प्रोटॉन्स फिर ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड। यहाँ इस दौरान इसमें होती है कन्फर्मेशनल चेंजेस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है एडीपी के साथ, ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज होती है, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है। For each ATP producer, two H positives from the F naught intermembrane space to the matrix down the electron down, that is along the concentration gradient of H positive, along the concentration gradient। एक एटीपी के लिए दो H पॉजिटिव ट्रांसफर होते हैं, एक एटीपी के लिए दो प्रोटॉन्स होते हैं ट्रांसफर फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, थ्रू द inner membrane towards the matrix, जो चैनल होती है F0 जो चैनल होती है ऑफ द एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स नंबर 5, वो होती है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटॉन्स होते हैं accumulate in the intermembrane space, और एटीपी होता है synthesized in the towards the matrix। फॉर ईच एटीपी, एक एटीपी को बनाने के लिए दो प्रोटॉन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्रोटॉन कैरियर, दिस एटीपी सिंथेसिस में। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इट इज पॉसिबल टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ द एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एक्सेप्शन। कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कुछ एजप्शंस लेनी पड़ेंगे। पहला एजप्शन, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे, और सीक्वेंशियल ऑर्डरली पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद फिर लिंक रिएक्शन, फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। असल में ये सीक्वेंशियली नहीं होता है, दे ऑकर साइमल्टेनियसली, पहली बात। दूसरी बात, एनएडीएच सिंथेसाइज इन ग्लूकोज ट्रांसफर इन द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज ऑक्सीजन, जो एनएडीएच सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस वो होता है ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है एक्चुअली। दीज आर सिंपल एजप्शंस, ताकि हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी एफिशिएंट प्रोसेस है, या ओवरऑल रेस्पिरेशन हाउ मच कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है उसको बताने के लिए ये एजप्शंस लगाए जाते हैं। पहले देयर इज अ सीक्वेंशियल, दीज प्रोसेस आर सीक्वेंशियल, मतलब पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होता है लिंक रिएक्शन, उसके बाद होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रिब साइकिल, उसके बाद होता है लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवेज आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, ये भी सरासर गलत है, एजप्शन लेनी पड़ेगी। किसी भी स्टेप में कोई भी हम इंटरमीडिएट या रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन इज नाइदर अ कैटाबॉलिक प्रोसेस नॉर एनाबॉलिक, और कैन से इट इज बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एनाबॉलिक। हम कहते हैं रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑन ग्लूकोज में रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव ग्लूकोज, ये सारी जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते हैं, 2 एटीपीज बनते हैं, 3 एटीपीज बनते हैं, टोटल 38 एटीपीज बनते हैं रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में इतने एटीपीज बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में इतने एटीपीज बनते हैं, ये सारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजप्शंस। पहला एजप्शन सीक्वेंशियल, दूसरा एजप्शन एनएडीएच जो बनता है ग्लाइकोलिसिस वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा एजप्शन कोई भी इंटरमीडिएट रिमूव या ऐड नहीं होता है, चौथा एजप्शन ये होता है कि ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज को यूज करते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये एजप्शंस होते हैं। बट दिस काइंड ऑफ एजप्शंस आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम, ऑल पाथवेज वर्क सारे पाथवे एक साथ काम करते हैं, वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम, सबस्ट्रेट्स किसी भी स्टेप पे एंटर करते हैं या वो वहाँ से रिमूव होते हैं। And when necessary, ATP is utilized as when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means. Enzymatic rates होते हैं क्योंकि 10 reactions होते हैं ग्लाइकोल्स में, उसमें इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम रेट तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 38 ATP molecules from one molecule of glucose during सारी रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस को लेके एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और लिंक रिएक्शन में, तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं दैट आर 38 इन नंबर, 38 इन नंबर। लेट्स नाउ कंपेयर फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली फर्मेंटेशन, खाली पार्शियल ऑक्सीडेशन होते हैं, उसमें तो खाली लेस देन 7% और 2 एटीपी बनते हैं, खाली 2 एटीपी बनते हैं इन फर्मेंटेशन, 2 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल बनते हैं 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे स्टेप, ये पॉइंट। Fermentation accounts for only partial breakdown of the glucose, whereas anaerobic respiration is completely degraded to carbon dioxide and water and with energy. In fermentation, there is a net gain of only 2 ATP molecules. Net gain होता है 2 ATP molecules का total for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions. Many more molecules of ATP are generated under aerobic. Many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions. खाली 2 ATP molecules में 38 ATP molecules. NADH is oxidized NAD positive rather slowly. Fermentation में NADH को NAD positive में oxidize करने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस पर में, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये स्टेप बहुत फास्ट होता है, ये प्रोसेस फास्ट होता है। NAD is oxidized and deposed rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of the aerobic respiration. In case of aerobic respiration. Aerobic respiration is an amphibolic pathway.
Glucose is the favored substrate for respiration. All the carbohydrates usually first converted into glucose before they are used for respiration. सबसे जो फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 होता है. Other substrates can also be respirated as mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step. बाकी प्रोटीन्स को भी यूज़ करते हैं हम एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स या फैट्स को भी यूज़ करते हैं हम एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, लेकिन वो एंटर नहीं करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप एट द ग्लूकोज स्टेप. वो दूसरे स्टेप्स पे वही पढ़ना होता है हमें. इस डायरेक्शन एम्फीबॉलिक पाथवे में हमें जनरली याद रखना है ये कि कौन सा मॉलिक्यूल अदर देन ग्लूकोज कहाँ किस स्टेप पे ऐड होता है इन द रेस्पिरेशन पे, किस स्टेप पे ऐड होता है. फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम होता है ऐड इन एसिटाइल कोएंजाइम ए किस स्टेप पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए सॉरी फैटी फैटी एसिड्स होते हैं एडेड एसिटाइल कोएंजाइम ए. प्रोटीन्स भी होते हैं एडेड पायरुविक एसिड स्टेप. प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं पायरुविक एसिड. फैट्स पे ब्रेक होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल फिर होते हैं एट द एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल. देयरफॉर रेस्पिरेशन में किसी स्टेप में प्रोसेस कहीं भी किसी भी स्टेप में कुछ मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को हम ऐड कर सकते हैं. देयरफॉर इन जनरल इट इज नाइदर अ कैटाबॉलिक नॉर एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज जनरल एन एम्फीबॉलिक पाथवे एम्फीबॉलिक पाथवे एम्फीबॉलिक पाथवे. इन किसी भी स्टेप पे इंटरमीडिएट को ऐड कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हम यूज़ कर सकते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. दो ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर द respiration, but other respiratory substrates can also be used like proteins like fats proteins. पर प्रोटीन्स होते हैं ब्रेक पहले अमीनो एसिड्स में और वो ऐड होता है एड पायरुवेट स्टेप दैट इज आफ्टर एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है ऐड. इसी तरह फैटी एसिड्स फैट्स को ब्रेक करते हैं इन द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. फिर फैटी एसिड होता है ऐड एट एसिटाइल फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए. इट्स लाइक थोड़ा सा मिलता है नाम में एसिड्स फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए. उसको रहेंगे हम नाम PAP प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स पायरुवेट प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स पायरुवेट यही रखना है इसमें यार. रेस्पिरेटरी पाथवे इज नॉट इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इट वुड हेंस बी बेटर कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबॉलिक पाथवे नॉट अ कैटाबॉलिक वन. सिंस रेस्पिरेशन ये थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि इस टेबल में सारा लिखा है. Acetyl coenzyme A is common to all proteins, fats and carbohydrates को सबको कॉमन होता है कौन? acetyl coenzyme A. Glucose is the favorite substrate for respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are oxidized for respiration. Other substrates can also be respirated as been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step. So if you got to see the points of difference, the fats would need to be broken down into the glycerol and fatty acids. If fatty acids were to be respirated, they would first be degraded to the acetyl coenzyme and enter the pathway. Glycerol would enter the pathway after convert to the PGL glyceraldehyde 3-phosphate. Glycerol होगा add glyceraldehyde 3-phosphate. glycerol होगा added glyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate. Fatty acids होगा added acetyl coenzyme. The proteins will be degraded to protease and amino acids after deamination depending upon their structure would enter the pathway at some stage in the cycle. Pyruvate or acetyl coenzyme pyruvate या acetyl coenzyme A pyruvate या acetyl coenzyme प्रोटीन्स के लिए मतलब आफ्टर deamination के बाद प्रोटीन्स की deamination के बाद वो एंटर होते हैं इन द पाथवे इन द रेस्पिरेटरी पाथवे. प्रोटीन्स की deamination के बाद वो एंटर होते हैं इन द रेस्पिरेटरी पाथवे या तो acetyl coenzyme A स्टेप में या तो pyruvate स्टेप में या acetyl coenzyme A स्टेप में या pyruvate स्टेप में. Since respiration involves the on the substrate, the respiratory traditionally being considered catabolic and the respiratory pathway is catabolic pathway, but this is respiratory pathway different substances would enter if they were to be respirated and drives and delivered. It's important to recognize that it's respiratory coefficient. Number of moles of carbon dioxide equal to the moles of oxygen or volume of oxygen consumed. Volume of carbon dioxide equal to volume of oxygen consumed is called the respiratory coefficient. Respiratory coefficient for carbohydrates is 1. Respiratory coefficient for carbohydrates or fats is less than 1. Tripalmitin is a fatty. Tripalmitin के लिए 0.9 होता है 0.7. Let's now look at another aspect of respiration. As you know, during the respiration, oxygen is consumed and the carbon dioxide is evolved. The ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the oxygen consumed is called as the respiratory coefficient or the respiratory ratio. Therefore, the SI unit of respiratory coefficient is unitless. Ratio of two volumes, it is unitless. ये भी आ सकता है question. Respiratory coefficient is also called as respiratory ratio. Volume of carbon dioxide to volume of oxygen वहाँ पे reciprocal करेगा volume of carbon dioxide volume of oxygen. The respiratory quotient depends upon the type of the respiratory substrate. For example, carbohydrates के respiratory quotient होता है 1 क्योंकि equal amounts of carbon dioxide oxygen release होते हैं कंज्यूम होते हैं.
इसी तरह फैटी एसिड्स के लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है लेस देन 1, फैटी एसिड्स एग्जांपल ट्राइपार्मिनोइड्स फैटी एसिड का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है 0.7, प्रोटीन्स के लिए रेस्पिरेटरी होता है ग्रेटर देन, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस वुड बी अबाउट 0.9, अबाउट 0.9, 0.9, 0.9, 0. सबसे ज़्यादा 0. ऑर्गेनिक एसिड के लिए होता है फैट्स और प्योर प्रोटीन्स और फैट्स, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स के लिए होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1, प्योर प्रोटीन्स, क्योंकि जो हमारे पास फूड होता है दैट्स मिक्सड फूड, उसके लिए होता है ग्रेटर देन 1। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, प्रोटीन के लिए 0.9, फैट्स के लिए 0.7, फैट्स के लिए 0.7, फैट्स प्योर प्रोटीन्स और फैट्स, प्योर प्रोटीन्स के लिए ग्रेटर देन 1, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स के लिए, प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स के लिए ग्रेटर देन, प्योर प्रोटीन्स और प्योर फैट्स के रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज ग्रेटर, ट्राइपार्मिनेट के लिए 0.7, प्रोटीन्स के लिए 0.9, प्रोटीन्स के लिए, प्योर प्रोटीन या प्योर फैट के लिए ग्रेटर देन 1, मिक्स। देखो हमारे पास जो फूड आता है उसमें ना तो प्योर कार्बोहाइड्रेट, प्योर प्रोटीन, प्योर फैट होता है, वहाँ पे होता है मिक्सड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मिला के होते हैं, उसके लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ऑलवेज होता है ग्रेटर देन 1। कार्बोहाइड्रेट को मिक्स फ्रूट फूड के लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट्स। अल्हम्दुलिल्लाह।